नमस्कार, मैं अंशिका। आप सभी दर्शकों का स्वागत। Finally, I would just like to speak poster of the next edition of EMR. Look at aviation industry, government, regulators to do the thing for us. Let's start doing it ourselves. Reduce our waste production. Start walking on the road to work instead of walking on the treadmill in the office and things like that. Legal people continue to order. They can force arguments where there are none, and they can make it controversial. With us is Mr. Weber Varun, founder AviaCool. So firstly, many congratulations for such a grand event. Thank you. So what was the thought about having this event? What is the main thread behind it? So basically, we have a section in Avia called Outreach, right? And we do basically a whole spectrum. तो ये तो जैसे एक बड़ा इवेंट आपने देखा, एक साल पहले हम कानपुर के छोटे से गांव में जहाँ पे बच्चों ने कभी ड्रोन देखा नहीं था, हमने एक वर्कशॉप की थी 4 दिन की कि स्क्रैच से ड्रोन और आरसी एयरक्राफ्ट कैसे बनाया जाए. सो वी आर इंटरेस्टेड इन आउटरीच. उसका लेवल कोई भी हो सकता है. तो व्हाट वी डू एज अ टीम इज वी वांट टू स्टार्ट विद आउटरीच अक्रॉस अ स्पेक्ट्रम, एंड दिस इज द अदर एंड ऑफ स्पेक्ट्रम. जहाँ पे आप ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं वो भी है. सेकेंड, ब्रिंगिंग इंडस्ट्री, ब्यूरोक्रेसी एंड स्टूडेंट फोर्स टुगेदर, वो एक बहुत बड़ा एजेंडा था. इसके तहत ऑलरेडी हमने एक टॉपिक पे इसका था EMRO 2022 NIT दिल्ली में हमने किया था, जिसका चैप्टर 2 हम नेक्स्ट ईयर करेंगे. एंड विथ अनदर थीम दैट इज ग्लोबल सस्टेनेबल एविएशन कॉन्क्लेव, वी हैव डन चैप्टर 1 टुडे इन इंडियन एविएशन अकेडमी. इस पर्टिकुलर कॉन्क्लेव का थीम ये था, 2 दिन का थीम था. पहले दिन हमने मेटाफॉर्म्स फाउंडेशन के साथ किया था, जो कि एक अनोखा ग्रुप है. डिफेंस के जितने भी एक्स आर्मी के लोग हैं, एक्स एयरफोर्स वाले हैं, एक्स नेवी वाले हैं, दे हैव कम टुगेदर एंड दे वांटेड अस टू डू एन इवेंट विद देम ऑन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिलिट्री एजुकेशन. कि बच्चे को कर्नल और मेजर जनरल में अंतर नहीं पता होता. राइट. इट्स समथिंग वेरी बेसिक, फोर्सेज वर डूइंग सो मच ऑफ आवर कंट्री, और हम कौन जाते हैं टू द टॉपिक वेयर स्टार्टअप्स आर वर्किंग ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज. But what technologies are they relevant to defense? True. Right. That was our first. Right. Second is, now that we sit here, we have mostly aviation experts from DGCA, Airport Authority, right, and independent aviation consultants who have come together to tell us ki how air travel or basically airport infrastructure has become greener from previous times and how it will become more greener. So that is our basic thought process with this event today. Okay. Yeah. So tell us something about AviaCool. What is the all-over vision of AviaCool? What it stands for? So it's a mixture of 2 words, aviation and Gurukul, right? And we make it AviaCool, yeah. And idea is again it lies in the word itself. Okay, we have 3 verticals majorly. First is our academia. We go for commercial pilot training, private pilot training, drone training, drone manufacturing, and everything related to academia. This also includes our collaborations with universities and colleges, so that kids right from a very young age they know what it takes to fly. वो एक बहुत बड़ा विजन है, right? Second, we are into events like this, right? Aviation में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास एविएशन पहुँचे, एरोस्पेस पहुँचे, ये एक हमारा बड़ा मोटिव है. Third, where we are little bit more serious is the tech transfer, right? तो हम रशिया के साथ काम करते हैं, रशिया के नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ काम करते हैं, इनटू एनालाइजिंग कौन सी टेक्नोलॉजीज़ इंडिया के लिए नेसेसरी है, उसको यहाँ तक कैसे लाया जाए, इंडिया से बाहर क्या दिया जा सकता है, डिफेंस में, एरोस्पेस में, एविएशन में. तो ये एक हमारा 3-part विजन है बेसिकली. यस. Also, sir, we heard a lot of speakers talking about sustainability. And one more thing that at times these conferences happen in somewhere in isolation, away from the academia. And it's a very nice gesture that you have organized it here in the hub itself. Yeah. So
all of that communication and that sustainability, how does that fit in? How important it is for the India as a country, to grow in this field? So I think there are 2 points to it, Yeah. and both the points are contradictory. First point is कि Indians by nature are sustainable. जैसे आपके घर में, मेरे घर में पुरानी पन्नी कोई नहीं फेंकता. True. एक बड़ी पन्नी है जिसमें बाकी पन्नियाँ रखी जाती हैं, राइट. सो वी बाय नेचर आर सस्टेनेबल. बड़े भाई के कपड़े छोटे भाई को मिल जाते हैं, उसकी किताबें, तो इन अ वे वी आर कंजर्विंग रिसोर्स, राइट. हमारे यहाँ पानी वेस्ट नहीं करने की एक आदत है. एट द सेम टाइम, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पॉपुलेशन वी हैव, राइट, थोड़ी थोड़ी गंदगी भी जो है एक बड़े मास स्केल में रिजल्ट करती है. तो जब आप एयर ट्रैवल की बात करें तो एयर ट्रैवल इन सिंगापुर कैन बी ग्रीन, बट एयर ट्रैवल इन इंडिया, सर इतने लोग, करोड़ों लोग है ना. दैट इज़ वाई अगर हम वर्ल्ड का एक बिगर शेयर ऑफ पॉपुलेशन है, हमारी जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी है. बिकॉज उतने लोग हैं हमारे पास, उतना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उतने एयरक्राफ्ट चलते हैं, उतने ही एयरपोर्ट्स बनते हैं, उतना ही पोल्यूशन बनता है, राइट. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वन ऑफ द सेंट्रल थीम्स फॉर इंडिया कि अगर हम अब नहीं करेंगे तो एक ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, जैसा कि आपने रेलवेज के साथ देखा होगा या आपने इवन रोड ट्रांसपोर्ट के साथ देखा होगा, राइट. तो दैट इज़ व्हाट इट इज़. So, what about the government? How is the government so much acceptable? Are they accepting your thoughts? Are they helping you? Are they holding your hand? एक्चुअली सच पूछे तो ये इवेंट का आइडिया ही हमें गवर्नमेंट सर्कुलर्स के थ्रू आया. ये कोई हमारा आइडिया था ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट. सिंधिया जी ने मल्टीपल इंटरव्यूज़ में ग्रीनर एयरपोर्ट्स एंड कार्बन नेगेटिव एमिशन की बात की है कि बाय 2030 टू 2050 हम चाहते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट्स लेसर एंड लेसर कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करें और लेसर पोल्यूशन करें इन जनरल. तो ये ड्राइव ही जो है गवर्नमेंट का स्टार्ट किया हुआ है. तो एक्चुअली वी वर इंस्पायर्ड फ्रॉम देम टू टेक दिस मिशन फॉरवर्ड. तो ऑब्वियसली सपोर्ट तो है ही है, आइडिया ही उनका दिया हुआ है. और आज हमारे साथ है अतुल सिंह, जो बात करेंगे ग्लोबल सस्टेनेबल एविएशन के बारे में. सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है. एंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द इवेंट? आप क्या एक सराहनीय कदम है जो संस्था है एविया कूल, इनके द्वारा ये जो आयोजित कार्यक्रम है कि हमारे पास क्या वैकल्पिक समाधान क्या हैं वैमानिकी के प्रचार और प्रसार के लिए. और जो अभी का जो दायरा है इसमें एक कम खर्चे में, कम लागत में, एक लंबे समय के लिए योजनाबद्ध ढंग से वैमानिकी का प्रचार और प्रसार कैसे हो सकता है, तकनीकी समाधान क्या हो सकता है, वैकल्पिक हमारे पास तकनीकी क्या है, वैकल्पिक हमारे पास ऊर्जा स्रोत क्या है. तो इनसे संबंधित जो भी चर्चा परिचर्चा जो हुई है या हो रही है, यह एक सराहनीय कदम है. और अभी हिंदुस्तान में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में आज तक कभी किसी स्तर पर इस पर्टिकुलर मुद्दे पर, इस विशेष मुद्दे पे, जहाँ पर एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत वैमानिकी के एक लंबे समय के संचालन हेतु कोई आयोजित नहीं किया गया था. तो इस तरह का आयोजन सराहनीय आयोजन है और एक अच्छी परिचर्चा हुई है. सर, सस्टेनेबल एविएशन की सब बात करते हैं, लेकिन कई बार चर्चा आकर केवल उसके फ्यूल पर रुक जाती है. लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ है एविएशन सेक्टर में जहाँ हम सस्टेनेबिलिटी के बारे में. बिल्कुल, मेरा यही मानना है और मैंने कहा भी है कि जब आप सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे एविएशन में, वैमानिकी में, जब आप सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे तो सस्टेनेबिलिटी को केवल आप ऊर्जा स्रोत या जो फ्यूल सिस्टम है, जो फ्यूल सप्लाईज है या फ्यूल सोर्सेस है, उस तक ही आप सीमित न करें. इसका दायरा बड़ा होना चाहिए और बड़ा होता है. सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये भी होता है कि वैमानिकी परिचालन या वैमानिकी की पूरी जो व्यवस्था है उसमें जितने भी संबंधित जो विभाग हैं या संबंधित जो क्षेत्र हैं उनमें भी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए. और सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कम लागत में एक लंबे समय तक उस उपादान का या उस सुविधा का उपयोग, एक सार्थक उपयोग, एक लंबे समय तक कम खर्चे में. तो
केवल इसको विमानों के ऊर्जा स्रोत या अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल तक ही सीमित न रखकर वैसे सारे चीज़ों को समावेशित करने की आवश्यकता है जो किसी उड़ान के सफल परिचालन और एक इकोनॉमिकल ऑपरेशन से संबंधित है। सर, बात करें टेक्नोलॉजी की, तो इंडिया सस्टेनेबल एविएशन में टेक्नोलॉजिकली कहाँ पर है और विदेशों में इसके ऊपर क्या रिसर्च चल रही है, इंडिया में क्या रिसर्च चल रही है? समानांतर ढंग से आप देखें तो जो भी कुछ विदेशों में हुआ है, अगर आप ऑल्टरनेट फ्यूल सोर्सेज की ही बात करेंगे फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन में आप वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की बात करेंगे तो एक भारत ने कुछ ऐसे इस देश में हुए हैं, कार्रवाइयाँ हुई हैं, कुछ नए सिस्टम इजाद हुए हैं। अभी आप कॉन्फ्रेंस में देखा भी होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून ने अभी जो भी कुछ ब्लेंडेड फ्यूल का जो निर्माण किया है एंड लॉट ऑफ फ्लाइट ऑपरेशंस टुक प्लेस वेयर आपने देखा है कि 40% पूरी ऊर्जा क्षय जो भी जो ईंधन है, ईंधन क्षय का 40% जो है वो एक वैकल्पिक स्रोत से आया है। तो अगर ये चीज़ें अगर निरंतर जारी रही और इस प्रतिशत को और बढ़ाया जाए तो निश्चित ही कुछ समय के बाद भारत एक वैकल्पिक वैमानिकी में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का एक अग्रणी देश होगा। जी, बेहतरीन। और सर, जैसे कि देखा जा रहा है कि अब धीरे धीरे छोटे हवाई अड्डों की बहुत डिमांड आती जा रही है, छोटे शहरों से, Tier 2, Tier 3 सिटीज़ से भी छोटे हवाई अड्डों की डिमांड आ रही है। तो सस्टेनेबल एविएशन वहाँ कैसे फिट इन होता है? क्या बड़े जो हवाई अड्डे हैं वो छोटे शहरों की नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे? ये बहुत सही प्रश्न है। देखिए, इसमें एक चीज़ सोचने वाली बात है कि वैमानिकी में कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं। वो या अगर वो फुल सर्विस एयरलाइन के लिए हो या लो कॉस्ट सर्विसेज के लिए हो, एक कॉन्टिनेंटल फ्लाइट के लिए हो या एक शॉर्ट हॉल रीजनल फ्लाइट के लिए हो, वो खर्चे बराबर होते हैं। तो अभी नीतिगत तौर पर ये होना चाहिए कि जो वो बराबर के खर्चे हैं, क्षेत्रीय वैमानिकी के प्रचार प्रसार के आलोक में उन खर्चों को कम किया जाए। जैसे अभी हमारे यहाँ एविएशन टरबाइन फ्यूल पे टैक्सेशन का मामला है या एविएशन टरबाइन फ्यूल की जो प्राइसिंग है वो फुल सर्विस एयरलाइन या रीजनल एयरलाइन के लिए बराबर है। ऐसी बात तो नहीं है कि सरकार ने कोई नीति दे दिया है कि नहीं रीजनल कनेक्टिविटी में जो फ्यूल प्राइसिंग इस दर से ली जाएगी, तो उसको जो है रैशनलाइज करने की आवश्यकता है। इट रिक्वायर्स रैशनल एप्लीकेशन ऑफ द पॉलिसीज as well as further apart from the fuel sourcing, जो भी अदर जो खर्चे हैं वो क्षेत्रीय तौर पर उनका एक अलग एक बने मापदंड बने कि इन खर्चों को कम किया गया है या कम किया जाएगा नीतिगत तौर पर, ताकि क्षेत्रीय वैमानिकी के प्रचार प्रसार हेतु ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो भी एजेंसियां हैं, एयरलाइन ऑपरेटर, कमर्शियल शेड्यूल्ड ऑपरेशन में या नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेशंस में, वो आगे आए, उसका लाभ लें और वैमानिकी का प्रचार प्रसार करें। सर, आखिरी में हम आपसे जानना चाहेंगे कि सस्टेनेबल एविएशन में आप भारत को कहाँ देखते हैं? आपकी खुद की पर्सनल उम्मीदें कहाँ हैं? नहीं, उम्मीदें काफ़ी हैं और भारतवर्ष में सरकार में कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, जैसे खासकर मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो देहरादून है उनके द्वारा जो उठाया गया कदम और जो टेक्नोलॉजी जो तकनीकी उन्होंने ईजाद की है, जिसमें उन्होंने बायोफ्यूल की ब्लेंडिंग की एविएशन टरबाइन फ्यूल के साथ और विमान का बहुत ही सफलतापूर्वक परिचालन किया, तो मुझे लगता है कि अगर वो उनके वो इन्वेंशंस, उनके जो भी टेक्नोलॉजिकल इनपुट जो विभिन्न कालखंडों में अब तक आते रहे हैं और आगे भी आएंगे, जैसे कि उनकी योजना है और उस योजना पे बहुत गंभीरतापूर्वक ये लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भारतवर्ष नागरिक उड्डयन में एक सस्टेनेबल मॉडल क्रिएट करने में कामयाब होगा। संबंधित एजेंसियां, पॉलिसी मेकर्स एंड एक्सपर्ट्स, they are doing their bit to create a kind of environment
which would be really very much sustainable, and India, भारतवर्ष जो होगा वो पूरे विश्व को इस मामले में एक नई राह दिखाएगा। ये थे हमारे साथ श्री अतुल सिंह जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के। एंड विद अस इज मिस्टर अतुल सिंह। सर फर्स्टली वेलकम टू द शो एंड वी वुड लाइक टू नो योर थॉट्स ऑन द इवेंट। This is a very nice initiative which has been taken by Aviacool under the exemplary leadership of Mr. Varun Dawa. This is for the first time in national capital. An event has been organized which is primarily focused upon the sustainability part of civil aviation. And sustainability part till yet has not been discussed or assessed or evaluated by any organization on such a august platform like whatever has been taking place this last 1 day here. So this is a very welcome move as per my opinion, because at the global level a lot of such events take place and a lot of advanced nations where aviation has attained that level of operational and economic maturity, they have organized this kind of event, but till yet in India we were not able to do this. So this is a great initiative, a great move by this organization to call for this kind of a public debate on such a nice platform. Sir, there was a lot of talk about aviation and sustainability. Where do you see it fitting into the whole ecosystem? Or maybe do we need to rejig the ecosystem itself? It has become compulsory now. See, as we invent a new mode of transportation, although aviation is not a new mode of transportation, but there are new technology being inducted into this mode of transportation called aviation. So as the new technologies are creeping inside, simultaneously the traffic is growing at the rate of 18% to 20% globally. We have to think upon this basic point that what would be the available resources to make our planes fly worthy in terms of availability of fuel. Fuel is a catalytic factor. Fuel is a factor which defines the complete economic structure of any airline operation, because around 40 to 45% of the cost factor revolves around the fuel pricing. So given the high volume of pricing of fuel, it's quite pertinent and very much urgent and necessary that all those policy planners should think very seriously that what are the available options for fueling the jet operations or the commercial or the military operation. Consequent to that, one very important thing is attached with this new mode of or alternative mode of fueling is reducing the total operational cost of any flight movement, or reducing the cost of setting up of the complete flight operation of any airline in any country. So in that way, any dialogue or any conversation or any communication would be in a larger agreement, with the complete prospective aviation ecosystem, as per my view. Also, sir, there has been a lot of talk about fuel only, but are there more areas in which aviation we can find sustainability? Agreed. Very valuable point which you have raised, and I greatly appreciate this. The way you have been, the way you have asked this question, that sustainability does not only restricted to making cheap fuel available. You have got a very valid point and a very nice question you have asked. Sustainability does also indicate that all those other logistical support system attached with any airline operation in any given aviation ecosystem, regional level or international level, has to be supportive in such a fashion which is sustainable, whether that might be setting up of a low cost airport, whether that might be an engagement with a kind of setup which involves less expenditure or less cost input or less
capital expenditure to set up a flying framework. So in that fashion, in that case, in that scenario, fueling, alternate fuel, all those alternate mode of logistical support system, alternate mode of aircraft designing, alternate mode of aircraft operation, flight planning, ground support system has to be made sustainable by inducting various methodologies and conceptual notes. So now aviation is extended its arm, to rural India as well. There are tier 2 and tier 3 cities which are coming up, which are demanding that more airports should be built. Right. So where do you see, can we go for a smaller airports? What are your thoughts on that? And lastly, where do you see India heading towards in the upcoming years? This is what has been envisaged in 2016 new civil aviation policy. Once we will go through the different component of that policy, which was brought in by the government in 2016, it has been very clearly laid out that government will focus to spread its wing to the smaller cities under regional connectivity program. And in that process, bids were invited to invite airline people to open up new sectors, and a lot of new sectors were opened. So that was a very good initiative, but there is a big question which government must understand, as well as all those stakeholders connected with this ecosystem, that certain pricing system, certain cost structure, not pricing, sorry, certain cost structure are fixed in civil aviation. So if you are talking about regional connectivity and spreading your outreach to tier 3, tier 2 cities to make Ude Desh Ka Aam Nagrik concept, then you have to lower down certain fixed costs to a level which is sustainable. So lowering down the cost structure enables आज के समाचार से विदा, मिलते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए